ہاتھ میں کیا ہے؟ اگر کسی کے لڑکی کے بالوں کو دو لڑیوں سے یہ باندھا جائے تو وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر تیسری لڑی بھی اس کے ساتھ آ جائے تو پھر وہ مضبوط ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بالوں کو کھینچے تو پھر بھی یہ بکھریں گے نہیں۔ تو اسی طرح سے جو رسی ہے اس کی بھی تین اگر لٹیں ہوں، دو ہوں تو کمزور ہیں، اگر تین ہوں تو مضبوط ہیں۔ آج کے پیغام میں ہم سیکھیں گے کہ ہسبینڈ وائف جو ہے وہ دو لڑیاں ہیں، اگر تیسری لڑی بھی ان کے اوپر آ جائے خدا یسوع مسیح تو کیا خوبصورت خاندان بنے۔ آج کے پیغام کو ایک بار پھر تالیاں جا کے ویلکم کریں۔ میرے پیغام کا عنوان ہے تیری ڈوری، اور آپ پڑھیں گے 22 کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ آمین۔ یہ جو کتاب ہے 22 کی، یہ لکھی گئی ہے سلیمان کی معرفت، سلیمان بن داؤد۔ یہ آیت شوہر اور بیوی کی بابت ہے۔ اگر دونوں مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں کے اوپر ایک اور ڈوری ہو، تیری ڈوری ہو، وہ یسوع مسیح کے ساتھ لپٹے ہوئے ہوں تو شیطان ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ بولے ہاللیلویا۔ تیری ڈوری 3 دھاگوں والی رسی عام طور پر اتحاد کو پیش کرتی ہے۔ تیری ڈوری کیونکہ 3 حصوں کا یکجا ہونا مضبوطی اور تقویت کو پیش کرتا ہے۔ تیری ڈوری جو ہے عموماً کلیسیا میں ٹیم ورک کو بھی بیان کرتی ہے، جب مل کے کام کیا جائے۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر کام کریں۔ کوائر میں اگر ایک بندہ گاتا ہو ٹھیک ہے، اگر کوائر میں ہے ہی ایک بندہ وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر سب مل کے گائیں تو کتنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب آئیے اس آیت کو اصل میں بائبل بھی ہم سیکھیں۔ تیری ڈوری مسیحی ازدواج اور مسیحی رفاقت اور ہسبینڈ اور شوہر کی جو رفاقت ہے اس کو بیان کرتی ہے، اور جہاں تیسرا دھاگا ہو، تیسری لاٹ ہو، وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ بائبل میں کلیسیا دلہن اور مسیح دلہا، ذرا دلہا کے لیے تعلیم بتا دیں زور سے دلہا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ دلہا کون ہے؟ یسوع مسیح۔ اور کلیسیا کیا ہے؟ دلہن۔ اب آئیے ہم پڑھتے ہیں 22 کی 4 آیتوں کو۔ 22 کی کتاب 4واں باب، اس کی 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں آیات پوری پڑھیں گے۔ ایک سے دو بہتر ہیں، ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھا لے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے، جو کلیسیا میں نہیں ہے یا جو تمہارا ہی کرتا ہے۔ 22 کی کتاب کا رائٹر کہتا ہے اس پہ افسوس جو اکیلا ہے، جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا سکے۔ پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں، اور تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی۔ اب آپ پوری آیات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ یہ آیات جو ہے شوہر اور بیوی کے اتحاد کو بیان کرتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ کلیسیا اور مسیح کے اتحاد کو بیان کرتی ہیں۔ اور تیری ڈوری جو ہے، میں اس کے لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کریں۔ یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو کلیسیا کے پہلے ہم بات کریں گے کلیسیا کے اتحاد کی۔ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، مسیح کا بدن کلیسیا ہے۔ بولے ہاللیلویا۔ تو کلیسیا مسیح کا بدن ہے، مسیح سر ہے۔ کلیسیا مسیح کے بغیر مردہ ہے۔ اگر سر یعنی مسیح جو ہیڈ ہے، جو سربراہ ہے، اگر وہ کلیسیا کے اوپر نہیں ہے تو کلیسیا مردہ ہے۔ کلیسیا کا آپس کا اتحاد بڑا ضروری ہے، لیکن ساری نہیں، ہیڈ ہی نہیں، برین ہی نہیں تو کلیسیا آپس خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔
रफाकत कलीसिया की बहुत जरूरी है। आपस में इकट्ठे मिलना, इकट्ठे दुआ करना, इकट्ठे चर्च में आना, फैमिली मिलकर चर्च में आए, कलीसिया इकट्ठे मिलकर प्रस्तुत करे, मिलके उसकी हमदो सना करे, ये बहुत अच्छी बात है। मिलके दुआ करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी तेरी डोरी को लैदा नहीं होने देना। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल करते हैं, मसीह के बदन का हिस्सा तब बनते हैं जब वो पानी का बपतिस्मा लेते हैं। क्योंकि छठे बाब में रोमी में लिखा है कि मसीह के आने का तरीका एक ही है, पानी का बपतिस्मा। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और मसीह यीशु में आने का तरीका रोमियो छठे बाब में है। तौबा निजात के बाद पानी का बपतिस्मा जब हम लेते हैं तब हम कलीसिया बनते हैं, तब हम मसीह का बदन बनते हैं, और कलीसिया का जो हेड है मसीह हमारा सर बनता है। इब्तदाई कलीसिया ने कैसे तरक्की की? जब कलीसिया आपस में इकट्ठी होती है, एक दूसरे की हौसला अफजाई होती है। जब कलीसिया आपस में जमा होती है, एक दूसरे की मदद होती है। जब कलीसिया आपस में जमा होते हैं तो एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। जब हम आपस में एक बदन है, हमें एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होना है। बोले हालेलुया। क्योंकि कलीसिया तरक्की तब करती है जब यूनिटी हो, जब इत्तेहाद हो। आप इबादत के बाद एक दूसरे से मिला करें, एक दूसरे का हालचाल पूछें। आज इबादत के बाद आपने उस बहन से मिलना है, उस भाई से मिलना है जिसको आप नहीं जानते। पता नहीं कितनी मुद्दत से कोई चर्च में आया, आपको बताइए उसका नाम क्या है, पता नहीं वो कहां से आते हैं, उनका हाल क्या है, वो क्या काम करते हैं। एक दूसरे से रफाकत करें, एक दूसरे का हाल मालूम करें, और एक दूसरे के लिए दुआ करें। क्योंकि देखा जब कलीसिया एक दूसरे के लिए दुआ करती है तो हम शिफा पाते हैं। बोले हालेलुया। तो दो जो डोरियां हैं इनको इकट्ठा करना है, वो कलीसिया का हिस्सा, कलीसिया जो कि यूनिट है, फराद पे हर फर्द को आपस में मुत्तहिद होना है, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। पहली कलीसिया जो यरूशलेम में कायम हुई, जो 120 की जमात से शुरू हुई, जो पेंटिकोस्ट के दिन शुरू हुई, उस कलीसिया के बारे में बताओ, उससे तरक्की कैसे की? बताइए कैसे तरक्की की? जमा होते थे, रोटी तोड़ते थे, रफाकत रखते थे। हाँ जी, कैसे हुई? आपस में जमा होने से बाज नहीं आते थे, रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते और दुआ में मशगूल रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। चलिए पढ़ लेते हैं निमात की किताब 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। देखिए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। जब पहली कलीसिया कायम हुई है तो ये सारी बातें उनके अंदर पाई जाती थी। आपस में रफाकत रखते थे, रोटी तोड़ते, यानी शायरबानी के लिए जमा होते थे, और दुआ करते थे, रफाकत करते थे, क्योंकि रफाकत में ही बरकत है। जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं उनके बीच में हूं। बोले हालेलुया। तो इत्तेहाद से ये सब कुछ होता है। सच है, 1 से 2 बेहतर है कि नहीं? 1 से 2 बेहतर है। जैसे मैंने बोला, 2 इकट्ठे लेटेंगे तो ज्यादा गर्म होंगे। और ऐसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप चूल्हे में आग जलाएं, एक लकड़ी जल रही हो तो इतनी गर्मी नहीं देगी, लेकिन 2-3 लकड़ियां, 4-5 लकड़ियां डाल दें तो कैसे भावड़ मचेगा होगा, कैसे शोरे उठेंगे। जब आप इकट्ठे मिलकर दुआ करेंगे, आपकी दुआ खुदा के हुजूर पहुंचेगी, भरपूर की मदद। पौलुस रसूल अकेला ही काफी था। शेर वफर जिसको रसूल आज़म कहते हैं, लेकिन किसी भी मिशनरी सफर पे वो अकेला नहीं गया। उसने मिशनरी सफर की है। पहले तो अंताकिया की कलीसिया ने दुआ करके उनको उन पे हाथ रखे, उनको मखसूस किया और उनको मिशनरी सफर पे भेजा। कभी भी वो अकेला नहीं गया। पहले मिशनरी सफर में उसके साथ बरनबास था और यूना मरकस था। पहले सफर में उसके साथ कौन था? बरनबास और यूना मरकस, ये एक ही बंदा है, यूना मरकस। दूसरे सफर में उसके साथ सेलास था, तीमुथियुस था, लूका था, और प्रिस्किला और अक्विला भी उसके साथ मिल गए। तीसरे सफर में तीमुथियुस था, लूका था, तीतस था। ये उसके हम नवा थे और उसके हमराही थे, उस टीम के मेंबर थे। पौलुस को मालूम था कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो बड़ी मुश्किलें आएंगी। इत्तेहाद में
यूनिट है, लिहाजा वो अपने साथियों को लेके गया और उसने कलीसियाएं कायम की। हालेलुया, बोले हालेलुया। उसने कलीसियाएं कायम की, उसने पूरे एशियाई कोचिंग के इलाके में कलीसियाएं कायम की, तुर्की के इलाके में कलीसियाएं कायम की, यरूशलेम से बाहर निकला, गैर कौमों का रसूल कहलाया, और आज उसी की खिदमत के वसीला से उसकी जो खतूत बाइबल में हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बरकत मिलती है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। और उसने खतूत में भी खानदानों को मुखातब किया है, उसने खानदानों को की मजबूत होने की बात की है। एक है, 2:11 है, कलीसिया आपस में मजबूत रहे तो खुदा बरकत देगा, और तीसरी डोरी को कभी ना भूले। एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जिन्हें मर्जी ढोलकियां बजाओ, जिन्हें मर्जी कवायद गाते रहे, जिन्हें मर्जी लोग इकट्ठे हो, अगर मसीह अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यानी ऐसी कलीसिया जो मसीह से खाली है वो खोखली है, मुर्दा है। और मुर्दा कलीसिया के बारे में मुकाशवा की किताब में लिखा है, तो जिंदा कहलाती है मुर्दा, जो जिनके अंदर मसीह नहीं है, जिनका रिश्ता नहीं है, जो तेरी जो डोरी है उसके साथ लिपटे हुए नहीं, वो मुर्दा है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। यानी कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मसीह को कभी नहीं छोड़ना। ओल्ड टेस्टामेंट की एक मिसाल इत्तेहाद की, जंग करनी थी अमालेकियों के साथ। असल में अमालेकियों ने ये जंग छेड़ी, तो मूसा ने यशुआ से कहा, यशुआ तू देखता है कि हम रफादीम के इलाके में आए हैं और अमालेकियों ने हम पे हमला कर दिया है, तू चल तो ले अपने साथ जाके उनपे हमला कर दे, मुकाबला कर। लिहाजा यशुआ अकेला नहीं गया फौज का मुकाबला करने के लिए। मूसा ने लिखा चंद लोग लेकर जा, अकेला नहीं, चंद लोगों को लेकर चला गया और जंग करने लगा। जंग शुरू हो गई। जब जंग शुरू हुई है तो यशुआ लड़ रहा था और मूसा खड़े होकर हाथ ऊंचा करके दुआ कर रहा था, कह रहा था, हे खुदावंद आज इनको फतह दे, यशुआ को फतह दे, यशुआ के साथियों को फतह दे, ये इतना हाथ से गए हैं, तेरे नाम के लिए गए हैं, इनको फतह दे, ये अमालेकियों पर गालिब आए। मूसा दुआ कर रहा था, हाथ खड़ा करके उसका हाथ थक गया। और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसका हाथ थकता था वो नीचे कर लेता था, और जैसे हाथ नीचे होता था अमालेकी गालिब आते थे, जैसे फिर हाथ ऊंचा करता था जो इस्राएली वो गालिब होते थे। एक तरफ हुर, दूसरी तरफ हारून, दोनों ने उसके हाथों को सहारा दिया और उसके हाथ यूं उठे रहे, और जब तक हाथ उठे रहे मूसा दुआ करता रहा और फतह होती गई। और फिर आखिर यशुआ के वसीला से, उसके साथियों के वसीला से खुदा ने इस्राएल को फतह दी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। कुरून 17 बाब उसकी 11वीं-12वीं आयत में ये वाकया आपको मिलेगा। फिर जंग जीती गई दुआ से। दुआ में भी इत्तेहाद। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप दुआ में कमजोर हैं, 2 साथी ढूंढे। दुआ में कमजोर हैं, 2 साथी ढूंढे, पार्टनर ढूंढे, उनको साथ मिलके दुआ करें, वो आपके हाथों को सहारा दे, वो आपको तकवीयत दे, मिलकर दुआ करें। कलीसिया यरूशलेम में जो कायम हुई उसके बाद बड़ा जुल्म हुआ। जब जुल्म हुआ पतरस को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया कलीसिया बदेलो जान इकट्ठे मिलकर दुआ कर रही थी और कह रही, आए खुदावंद पतरस को आजाद कर, क्योंकि पतरस जो कैद हुआ था कलाम सुनाने के जुर्म में हुआ था। कलीसिया इकट्ठे मिलकर दुआ कर रही थी तो पतरस को रिहाई मिल गई। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। यीशु ने इसका राज बताया है। देखिए मत्ती की इंजील 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत सुने, फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहां मैं उनके बीच में हूं। ये क्योंकि लगा इसके साथ, गौर से सुने, यहां देखिए सामने, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उससे पहले क्या लफ्ज है, क्या लफ्ज है, क्योंकि ये भी
जो रब्त जोड़ने वाला लफ्ज है जो ऊपर के हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाता है। ऐसे ही हम कहते रहते हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, इत्तेहाद की बात हो रही है, ऊपर इत्तेहाद की बात हो रही है, ऊपर यूनिटी की बात हो रही है। 2 शख्स इत्तेहाद करें, जब इत्तेहाद करके किसी बात के लिए दुआ करेंगे उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूंगा। तो ऐसे ही ये आयत नहीं लिख दी गई, उसके पीछे बैकग्राउंड है। हम इकट्ठे मिलके दुआ करेंगे तो बरकत मिलेगी। मसीही शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं। बिजनेस में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब जॉब मिलती है कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी वक्त भी वो फाइल कर देते हैं। मसीही शादी मुआहदा तो है, कानूनी हैसियत रखता है, लेकिन ये कवरेंट है, ये अहद है जो टूटता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट टूट जाते हैं, कभी भी टूट जाते हैं। जिसको जॉब मिली है वो वक्त से पहले भी नौकरी छोड़ देता है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है, या किसी भी मुआहदे को तोड़ा जा सकता है। लेकिन शादी एक ऐसा मुआहदा है जो अटूट है, टूट नहीं सकता। खुदा ने 2 को इकट्ठा किया है, हस्बैंड वाइफ को जोड़ा है। जब जोड़ा है तो लिखा है 1 से 2 बेहतर है। आदम के लिए क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अकेला रहना जो है ना, लिखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, हवा का अकेला रहना भी अच्छा नहीं। और आयत में भी ये था 1 से 2 बेहतर है, तो 2 हो जाए। और बाइबल में लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। शादी में कुव्वत होती है तब अगर दोनों का इत्तेहाद हो, कवनेंट हो। 1 से 2 बेहतर है। खुदा ने 2 को एक तन करार दिया है। खुदा ने आदम से नहीं कहा कि तुम एक तन हो गए। किसको कहा? आदम और हवा के मिलने के बाद का आदमी अपने माँ बाप को छोड़ेगा, बीवी के साथ मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। 2 मिलेंगे तो तन होंगे। किताब दूसरे बाब की 24वें आयत में इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। ऐसे जुड़े हुए, चिपके हुए, इकट्ठे रहे, मिलके रहे। ये आपने खुदा की हजूरी में ना, आपने ये खुदा की हुजूरी में वादा किया था, गवाहों की मौजूदगी में किया था। खुदा पास था जब आपने वादा किया है। मसीह शादी मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ ये अहद भी है। दूल्हा दुल्हन खुदा की हुजूरी में वादा करते हैं। निकाह के वक्त मसीह इज़्दिवाज पर खुदा की मोहर लगती है। मजबूत मसीह शादी जो है उसमें मोहब्बत होती है, तावन होता है, ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पर भरोसा, शक नहीं, ट्रस्ट करें। और ऐसे ही खामन भी एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे पे भरोसा करें और ईमान पे कायम रहे, मसीही ईमान पे कायम रहे। जब दोनों मिलकर आप दुआ करेंगे तो एक खूबसूरत फैमिली जो है आप तशकील देंगे। जब दोनों मिलकर कलाम पढ़ेंगे खूबसूरत फैमिली बनेगी। जब दोनों मिलकर चर्च आएंगे मजबूत खानदान बनेगा। जब मजबूत खानदान बनेगा तो कलीसिया भी मजबूत होगी। बोले हालेलुया। मसीह शादी में यीशु का किरदार क्या है? तेहरी डोरी। बोले हालेलुया। मसीह शादी में मसीह का किरदार क्या है? वो तेहरी डोरी है जो दोनों को बांध के रखती है। बोले हालेलुया। कच्चे धागे से बंधे हुए रिश्ते टूट जाते हैं। मसीह शादी के बगैर जो जिसमें मसीह शामिल नहीं है वो कच्चे धागों की तरह टूट जाती है। शादी में टूटने की वजह क्या है? शक, इज्जत ना देना। खामन बीवी से बढ़ के किसी और को इज्जत दे रहा है। माँ बाप की इज्जत जरूर करे, लेकिन बीवी की जगह बीवी की है, ठीक है। सास ससुर की जगह अपनी है, हस्बैंड वाइफ की जगह अपनी है। और जब शादी होती है, आपका शनाख्ती कार्ड बनता है, तो सरबराह के खाने में किसका नाम होता है? खान का। एक खानदान हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड वाइफ खानदान है पूरा। बच्चे तो अजाफी बरकत है। हस्बैंड वाइफ एक खानदान है। भरोसा मसीह पे रखें, ट्रस्ट रखें, तीसरी डोरी में के साथ अपने आप को लपेटे रखें। मसीह को मरकजी जगह दें, मसीह को दरमियान में रखें। अपने इज़्दिवाज में सेंटर आपका मसीह हो, जिसको कहते हैं क्राइस्ट सेंटर्ड मैरिज। अपनी शादी को ऐसा बनाएं जिसमें मसीह को मरकजी है। बोले हालेलुया।
اور جب مسیح مرکزی حیثیت حاصل ہوگی برکت نہیں بنتے. ایسی شادیاں ٹوٹتی ہیں جب آپ مسیح کے ساتھ نہیں چلتے تو ٹوٹ بھی جاتی ہیں. لیکن مسیح کے ساتھ چلے. یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میں چاہتا ہوں دوبارہ ہم وائس کے چوتھے باب کی بات میں دوبارہ پڑھیں. اکیلا شخص شکست کھا سکتا ہے مگر دو شخص مل کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور تیری ڈوری مضبوط ہوتی ہے. دو کٹھے رہے, باہم اتحاد میں رہیں, اپنی بیوی کو ان کا تحفظ کرنا, اس کو پالنا, اس کی حفاظت کرنا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی عزت کو رکھنا, قائم رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور اپنے شوہر کی عزت کو قائم رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہے. اپنے شوہر کو عزت بھی دیں اور اسے وہ مقام دیں جس کا وہ حقدار ہے. مسیح کو مرکزی حیثیت لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. ایک آیت پڑھتے ہیں جی, پہلا پترس 3 باب اس کی 7ویں آیت. اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو, عقل مندی سے, اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. اے اوقات کم ہے عزت, عورت کی عزت, بیوی کی عزت. یہ لوگ بڑا مشکل ہے پنجاب کے معاشرے میں کہ کہتے ہیں عورت کی عزت, بیوی کی عزت. بائبل کہہ رہی ہے شوہرو اپنی بیویوں کی, اور یوں سمجھو ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. سنیں, بیوی ہسبینڈ دونوں کبھی کبھی کہتے ہیں بس اب بڑی دیر ہو گئی دعا کر رہے ہیں, دعا ہی نہیں سنی جاتی. ہسبینڈ وائف کبھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بڑی دیر سے فلاں بات کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا, یہاں لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. خاوند بیوی کی عزت کرے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. خاوند بیوی کو نازک جان کر اس کی عزت کرے تاکہ دعائیں رک نہ جائیں. تو رکھے نہ گالا کر دے جی دعا نہیں سنی جاتی. دیکھا میاں خوش ہو گئی ہے نا. ابھی پڑھ لیتے ہیں پہلا پترس 3 باب پہلی دوسری آیت. شوہروں کے لیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے, بیویوں کے لیے 2 آیت. پہلا پترس 3 باب پہلی اور دوسری آیت. اے بیویوں تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو, اس لیے کہ اگر بعض تم میں سے کلام کو نہ مانتے ہو تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن سے خدا کی طرف کھینچ جائیں. بیویوں سے کہا ہے اپنے خاوند کی عزت کریں, تابع رہیں اور اپنے چال چلن سے ان کو سیدھے راستے پہ لائیں. یہ لکھا کہ اگر وہ صحیح نہ ہو, نشے کرتے ہو, گالیاں دیتے ہو, چرچ نہ جاتے ہو, خدا سے دور ہو, بچوں سے پیار سے بات نہ کرتے ہو, یعنی کہ وہ اچھا شور ثابت نہیں ہو رہے, بیوی سے کہا گیا ہے تم اپنے نیک چال چلن سے اس کو جیت سکتی ہے. ایسے دوسروں کو اپنے شوہر کے بارے میں شکایتیں کرتی رہے میرا خاوند بڑا برا ہے, یہ بری بات ہے. آپ اپنے خاوند کی انسلٹ نہ کریں, عزت کریں, تابع رہیں تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. جب تک یہ زمین پہ اکٹھے رہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, اپنے چال چلن سے ایک دوسرے کے تابع رہیں. جب خاوندوں کو کہا عزت کریں تو بیویوں کو بھی لکھا ہے عزت کرو, عزت بھی کریں, پیار بھی کریں. اور جہاں لکھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی رہے, یہ بلا کیا ہے, بائبل میں لکھا ہے بیوی اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. ہے نہیں وہ رسائی سکیا رہے, آن والے ہو گئے پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب ہے عزت. کتنے لوگ کو پتا ہے خدا سے ڈرنے کا مطلب, خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے روح کو ماننا, اس کے دبدبے کو ماننا, اس کے حکموں کو ماننا, اس سے پیار کرنا. یہی بات بیوی کے لیے اپنے شوہر سے ڈرنے سے مطلب ہے اس کے اختیار کو دیکھے. خدا نے اس کو ہیڈ بنایا ہے, سربراہ بنایا ہے. دونوں ایک دوسرے کو پیار کریں لیکن تیسری ڈوری کو کبھی نہ جانے دیں جو کہ خدا یسوع کی آخری ایک آیت پڑھیں گے کیونکہ پڑھے کیا ہے, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں, مجھے نفرت ہے طلاق سے. کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الفاظ فرماتا ہے اس لیے تم اپنے نفس پہ سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو. یہاں شوہروں سے کہا بے وفائی نہ کرو,
बाइबल दोनों कहते हैं बेवफाई ना करें, किसी से बेवफाई ना करें। जिस दिन हाथ रख के आपने खुदा के खादम के सामने ऐड किया था, उस दिन को याद रखें। उस दिन खुदा साथ था, सामने था, अब खुदा को अपने साथ लपेटे गए। हालेलुया। तेरी डोरी कभी आपको टूट नहीं मिलेगी, खुदा आपके साथ।